Good morning student. I hope you are well and good at your home. Welcome you to online class MLP School Rajpura. I am Poonam. Today I teach you some basics parts of computer. First of all we discuss about input devices. Input devices keyboard. This one is the keyboard. Keyboard is an input device. It is used for typing. Second is mouse. This one is the mouse. Mouse is an input device. Mouse is an pointing device. Mouse involves 3 बटन. माउस में कितने बटन होते हैं? 3 बटन, लेफ्ट, राइट एंड स्क्रॉल बटन. And third input device is scanner. Scanner is used for scan any picture and text. Scanner is an input device. Scanner scan text and picture both. Next one is output device. Output devices. First है monitor. Monitor. This one is the monitor. Monitor look like a TV screen. Monitor is an output device. Monitor display result on the screen. Whatever we do in the computer. Monitor looks like a television. Monitor gives us soft copy output. Monitor क्या देता है? Soft copy output मीन जो हमें कंप्यूटर पे दिखाई देता है. Printer. Printer is an output device. Printer gives us hard copy output. Printer क्या देता है हमें? Hard copy output. और monitor क्या देता है? Soft copy output. This one is the printer. Next है processing device. Processing device is CPU. This one is the CPU. CPU stand for Central Processing Unit. CPU is brain of computer. CPU कैसे वर्क करता है? एज ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. नेक्स्ट वन इज स्टोरेज डिवाइस. पेन ड्राइव इज ए स्टोरेज डिवाइस. नेक्स्ट वन इज स्टोरेज डिवाइस. पेन ड्राइव इज स्टोरेज डिवाइस. So all student doing this question in fair notebook. Thank you. Have a nice day. Good morning student, welcome to online classes. This is Seema from MLP International School Rajpura. So dear student, class is first subject is GK. Our topic is national symbols. So student, in the last video we did completed 8 national symbols of India. Today we will read further. Okay, so beta mention your heading. NATIONAL national. SYMBOLS symbols. National symbol means क्या होता है बेटा? राष्ट्रीय चिन्ह. Okay, so our 9th national symbols and national flower. NATIONAL national. FLOWER flower. Our national flower is Indian lotus. Okay, lotus means क्या होता है बेटा? कमल का फूल. So Indian lotus is the most beautiful species of aquatic. Aquatic species means होती है बेटा प्रजाति, और aquatic means होती है जलीय, और प्लांट मीन्स पौधे. सो जो ये लोटस का फूल है, ये मोस्ट ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर, एक किसकी? जलीय पौधे की एक प्रजाति है. कॉमनली कल्टिवेटेड इन वाटर गार्डन्स. ये कहाँ पे उगते हैं बेटा? जो वाटर गार्डन होते हैं ना, पानी के, जो उसमें ये उगते हैं, जलीय गार्डन में. दिस एक्वाटिक प्लांट ऑक्यूपाइज ए यूनिक पोजीशन. कि ये जो एक्वाटिक प्लांट है, ये ऑक्यूपाइज, ये एक यूनिक स्थान रखता है इन आर्ट, कला एंड माइथोलॉजी मीन्स होता है बेटा अब पौराणिक कथाओं. ठीक है. ऑफ एंशिएंट इंडिया. एंशिएंट मीन्स क्या होता है? पुराना. ठीक है. जो हमारे इंडिया की जो पौराणिक कथाएं होती है, कला होती है, उसमें ये क्या करता है? एक यूनिक स्थान रखता है. ठीक है. सो देखेंगे बेटा, जो हमारी नेशनल फ्लावर है इंडियन लोटस, जो है ये क्या है? मोस्ट ब्यूटीफुल स्पीसीज ऑफ एक्वाटिक प्लांट. ये एक जलीय पौधा की प्रजाति है. कॉमनली कल्टिवेटेड इन वाटर गार्डन्स. ये कहाँ पे होता है बेटा? जो वाटर जलीय गार्डन होते हैं ना, बगीचे, जलीय बगीचे में ये उगता है. द एक्वाटिक प्लांट ऑक्यूपाइज ए यूनिक पोजीशन. ये एक यूनिक स्थान रखता है, अलग से स्थान रखता है इन द आर्ट, कला एंड माइथोलॉजी मीन्स क्या होती है? पौराणिक कथाएं ऑफ एंशिएंट इंडिया. जो पुराना, जो मतलब पहले से ही एक अलग स्थान रखता है. 10th नंबर है
national fruit, our national fruit is mango, mango, mango. our national fruit क्या है बेटा? mango. so mango is the national fruit of India. जो इन mango है ये इंडिया का national fruit है. cultivated mostly for edible fruit, जो ये एक खाने योग्य एक फ्रूट है. इंडिया इज होम टू मोर देन 100 वराइटीज़ ऑफ द मैंगो. क्या है कि इंडिया में इसकी मैंगो की 100 से भी ज़्यादा 100 से भी ज़्यादा प्रजातियां हैं. फाउंड इन नेचर एज वेल एज इन द वाइल्ड फॉरेस्ट. ये क्या पे जंगलों में भी पाया जाता है. ठीक है. सो एंड 11th नंबर इज नेशनल ट्री इंडियन बैनियन. बैनियन ट्री कौन सा होता है बेटा? हमारा नेशनल ट्री है. इंडियन बैनियन इज़ द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया. ये इंडिया का नेशनल ट्री है. एंड नेटिव टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. नेटिव मीन्स क्या होता है बेटा? हमारा देसी. कि ये जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट मीन्स उपमहाद्वीपों में देसी है. ओनली बैनियन ट्री इज़ अमंग द लार्जेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड. जो ये बैनियन ट्री है ये ज़्यादातर संसार है उसमें सबसे लंबे पौधे बैनियन के होते हैं. ओके. सो रिपीट करेंगे बेटा. नेशनल फ्लावर, आवर नेशनल फ्लावर इज इंडियन लोटस. इंडियन लोटस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल स्पीसीज ऑफ एक्वाटिक प्लांट. ये जो इंडियन लोटस का जो ये फूल होता है ये इन जलीय पौधों में की प्रजातियों में एक अलग से स्थान रखता है. कॉमनली कल्टिवेटेड इन वाटर गार्डन्स. ये कहाँ पे होता है बेटा? वाटर गार्डन, जलीय बगीचे में. दिस एक्वाटिक प्लांट ऑक्यूपाइज ए. जो ये एक्वाटिक प्लांट होता है जलीय पौधे होते हैं ये एक यूनिक स्थान रखता है इन आर्ट, कला एंड माइथोलॉजी. पुरानी कथाओं में एंशिएंट इंडिया. पुरान जो मतलब पहले से जो पुरानी कथाएं चली आ रही है उसमें एक ये अलग से स्थान रखता है. एंड आवर 10th नंबर इज नेशनल फ्रूट. सो आवर नेशनल फ्रूट इज मैंगो. मैंगो इज आवर नेशनल फ्रूट. मैंगो इज़ द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया. मैंगो जो है वो इंडिया का नेशनल फ्रूट है. कल्टिवेटेड मोस्टली फॉर एडिबल फ्रूट. ये जो है वो खाने योग्य एक फ्रूट है. इंडिया इज़ होम टू मोर देन 100 वराइटीज़. इंडिया में इसकी 100 से भी ज़्यादा वैराइटीज़ है. एंड मैंगो फ्रूट फाउंड इन नेचर. ये प्राकृतिक भी होते हैं एज वेल एज इन वाइल्ड फॉरेस्ट. जंगली जो हमारे फॉरेस्ट मीन्स होते हैं जंगल. ठीक है. जंगली जंगलों में भी ये नेचुरली होते हैं. ठीक है. एंड 11th नंबर इज नेशनल ट्री. और नेशनल ट्री इज इंडियन बैनियन. इंडियन बैनियन इज़ द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया. ये इंडिया का नेशनल ट्री है. एंड नेटिव टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. जो ये है जो ये इंडियन बैनियन है बेटा ये मतलब उपमहाद्वीपों में जो भारत क्या उसमें एक ये स्थान रखता है. ओनली बैनियन ट्री इज़ अमंग द लार्जेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड. ओनली बैनियन ट्री जो है वो लार्जेस्ट मीन सबसे लंबा स्थान जो ट्री होने का वो स्थान रखता है. ओके. सो थैंक यू. हैव ए नाइस डे. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस. दिस इज सीमा फ्रॉम MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा. सो डियर स्टूडेंट, क्लास इज फर्स्ट. Our subject is math and topic is reasoning questions. So beta mention your heading. REASONING reasoning. QUES and questions. Okay, reasoning questions. So let's start. Our first question is which number will complete the pattern. कि यहाँ पे जो नंबर दिए हुए हैं इसमें आगे कौन सा नंबर जो ऑप्शन होंगे वो कौन सा नंबर यहाँ पे इसको कंप्लीट करेगा. सो देखेंगे बेटा हमारे यहाँ पे 7, 14, 21 एंड 28. सो लुक बेटा यहाँ पे हम देखेंगे कि 7 की टेबल का एक पैटर्न बना हुआ है. 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28. सो नेक्स्ट 7 5 जा 35. सो हम 35 पे क्या करेंगे यहाँ पे टिक कर देंगे. ओके. सो 35 पे बेटा हम यहाँ पे टिक कर देंगे. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिगर कम्स एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क्स इन द फिगर पैटर्न गिवन बिलो इज. जो यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क है इसकी उस पर कौन सी फिगर आएगी वो हमें अभी यहाँ पे देखना है. ठीक है. सो बेटा देखेंगे कि फर्स्ट हमारा 1
फोर्थ सर्कल है, उसके बाद हाफ है, फिर 1/3 है, फिर कंप्लीट सर्कल है। सो उसके बाद पिक्चर फिर से रिपीट हो रही है। सो देखेंगे बेटा फिर से हमारे ये 1/4 सर्कल है, उसके बाद एक ये क्वेश्चन मार्क्स है एंड फिर ये वाली पिक्चर है। सो देखेंगे बेटा हमारी ये वाली पिक्चर हो गई और ये वाली हो गई, तो इसके बीच में हमारे कौन सी बची, ये वाली पिक्चर, ये एक हाफ सर्कल की पिक्चर बनी हुई है। तो इस पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे देखेंगे कि ऑप्शन में ए, बी, सी और डी। सो हमारे बी ऑप्शन में यही वाली पिक्चर है, तो इस पर हम टिक लगाएंगे। ओके, सो इस पर हम टिक कर देंगे ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल कंटिन्यू द गिवन सीरीज, कि कौन सा जो ऑप्शन है वो सीरीज को कंटिन्यू रखेगा, ये हमें बताना है। सो देखेंगे बेटा हमारे यहाँ पे रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल स्ट्रेट बिल्कुल ऐसे सीधा है और एक ऐसे टेढ़ा हुआ है। फिर उसके बाद वही पिक्चर रिपीट हो रही है, उसके बाद फिर यही वाली आई है, तो अभी इसके बाद क्या आएगी हमारी ये वाली पिक्चर। ओके, यही वाली पिक्चर रिपीट होगी। तो हमारे देखेंगे ऑप्शन में ये वाली पिक्चर नहीं है, बी में भी नहीं है एंड सी में ये वाली पिक्चर हमें मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सी पे यहाँ पे टिक लगाएंगे। ओके, सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नंबर विल कम नेक्स्ट, की कौन सा नंबर यहाँ पे नेक्स्ट आएगा। सो देखेंगे बेटा 3 के बाद 6 के बाद 9 के बाद क्या आएगा, यहाँ पे हमें ये बताना है। सो देखेंगे बेटा कि यहाँ पे क्या बन रहा है, 3 की टेबल का एक पैटर्न बना हुआ है। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। सो 12 देखेंगे हमारा ऑप्शन का है 10, 14, 16 एंड 12। सो 12 पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे टिक कर देंगे। ओके, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नंबर विल कंप्लीट द पैटर्न, की कौन सा नंबर जो है वो पैटर्न को कंप्लीट करेगा। सो स्टूडेंट सो देखेंगे बेटा 2, 4, 8 के बाद क्वेश्चन मार्क्स है। 2 के बाद देखेंगे हम 4 है, तो ये क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। 2 के बाद 4 के बाद डबल, 2 को हम डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 और 4 को डबल करेंगे तो 8। ठीक है, अब 8 को डबल करेंगे, 8 और 8 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 16। तो 16 पे हम क्या करेंगे, टिक करेंगे। ओके, सो बेटा रिपीट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है विच नंबर विल कंप्लीट द पैटर्न, की कौन सा नंबर पैटर्न को कंप्लीट करेगा। 7, 14, 21, 28। सो स्टूडेंट आई टोल्ड यू कि यहाँ पे 7 की टेबल का पैटर्न बना हुआ है। 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 एंड नेक्स्ट डिजिट इज 7 5 जा 35। सो 35 पे टिक करेंगे। Our next question is the figure comes at the place of question marks in the figure pattern given below is okay. So यहाँ पे जो ये बने हुए हैं फिगर, इन यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे इनमें से कौन सी फिगर यहाँ पे आएगी। ठीक है, सो हम देखेंगे बेटा यहाँ पे हमारा एक ये है 1/4 सर्कल की पिक्चर बनी हुई है, उसके बाद हाफ है, फिर 1/3 है, फिर कंप्लीट सर्कल है, फिर ऐसे ही है। सो बेटा इसको हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारी ये वाली पिक्चर हो गई कंप्लीट, फिर हमारी ये वाली पिक्चर है। तो बीच में हमारा जो क्वेश्चन मार्क है उसके बीच में कौन सी पिक्चर आएगी, ये वाली। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पे ये वाली पिक्चर हमारी कौन से नंबर पे है, बी नंबर पे। तो बी नंबर पे हम टिक लगाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल कंटिन्यू द गिवन सीरीज, की सीरीज को कौन सी ऑप्शन कंटिन्यू रखेगा। सो देखेंगे बेटा हमारी ये रेक्टेंगल की पिक्चर बनी हुई है, जो ये इधर एक स्ट्रेट है एंड एक वह। फिर देखेंगे सो हमारे देखेंगे हम कि कौन सी क्या पे आ रही है। सो हमारे ये बिल्कुल स्ट्रेट है, फिर ये लेटा हुआ, फिर स्ट्रेट है, फिर ये लेटा हुआ। तो हमारे देखेंगे कि बेटा फर्स्ट नंबर पे ये वाली पिक्चर रिपीट हुई, नेक्स्ट ये वाली पिक्चर एंड अब उसके बाद नेक्स्ट कौन सी वाली होगी, ये वाली पिक्चर रिपीट होगी। ओके, सो हमारे देखेंगे ये ऑप्शन में है, नहीं मिली, बी में नो, सी में, तो सी में हमारी ये वाली पिक्चर है, तो हम क्या करेंगे, सी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नंबर विल कम नेक्स्ट, कि कौन सा नंबर नेक्स्ट आएगा। 3 6 9 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9। यहाँ पे 3 की टेबल का पैटर्न बना हुआ है, तो बेटा देखेंगे 3 4 जा 12। सो 12 पे हम टिक करेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नंबर विल कंप्लीट द पैटर्न, की कौन सा नंबर पैटर्न को कंप्लीट करेगा। 2 4 8। हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, डबल हो रही है। 2 के बाद 4 4 के बाद 8 8 के बाद बेटा 8 को डबल करेंगे तो कितना होगा 16। ओके, सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Hello dear students, today we will do some vegetables name in English to Hindi.
in English spoken. So let's we start classes first. Okay, in the last video we did complete 1 to 13 vegetable name English to Hindi. Today we will do 14 to 27. So let's we start. 14 is cucumber. 14 is cucumber. Cucumber हो जाएगा बेटा खीरा. Cucumber खीरा. खे ई रे आ खीरा. Cucumber खीरा. नेक्स्ट इज स्वीट पोटैटो. स्वीट पोटैटो. स्वीट पोटैटो हो जाएगा शकरकंद. शकरकंदी भी बोलते हैं बेटा इसको, शकरकंद भी बोलते हैं. स्वीट पोटैटो शकरकंदी या शकरगंदी. शकरकंदी. ओके नेक्स्ट इज पीज. PEAS पीज. पीज मीन्स मटर. पीज मटर. पीज मीन्स मटर. ओके नेक्स्ट इज बिटर gourd. बिटर gourd. BITTER bitter. GOURD. gourd. Bitter gourd means karela. Bitter gourd karela. Okay, next is spinach. SPINACH spinach. Spinach means palak. Spinach palak. Okay, next is onion. ONION onion. Onion means pyaj. Onion means pyaj. Okay, next is carrot. CARROT carrot. Carrot means gajar. Carrot gajar. Okay, next is radish. 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 Radish means मूली. Radish means मूली. Okay, next is broccoli. Broccoli means हरी फूल गोभी. Broccoli means हरी फूल गोभी. BROCCOLI. Broccoli means हरी फूल गोभी. Okay, next is beans. 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 Beans means फलियाँ. Beans फलियाँ. FLIYA. फलियाँ. Beans means फलियाँ. Okay, next is bottle gourd. BOTTLE bottle. GOURD. Bottle gourd means Loki. Bottle gourd Loki. LOKE Loki. Bottle gourd Loki. Okay, next is pumpkin. PUMP KIN. Pumpkin. Pumpkin means kaddu. Pumpkin kaddu. Okay dear student, next is mustard leaves. Mustard leaves. MUS MUSTARD turd. Mustard LEAVES leaves. Mustard leaves. Mustard leaves means सरसों के पत्ते या सरसों का साग. Mustard leaf सरसों के पत्ते. Okay, next is mushroom. MASROOM. Mushroom. Mushroom means mushroom. Mushroom means mushroom. Dear students, I repeat again. Cucumber खीरा. Cucumber खीरा. Sweet potato शकरकंद. Sweet potato शकरकंद. Peas मटर. Peas मटर. Bitter gourd करेला. Bitter gourd करेला. Spinach पालक. Spinach पालक. Onion प्याज. Onion प्याज. Carrot गाजर. Carrot गाजर. Radish मूली. Radish मूली. Broccoli हरी फूल गोभी. Broccoli हरी फूल गोभी. Beans फलियाँ. Beans फलियाँ. Bottle gourd लौकी. Bottle gourd लौकी. Pumpkin. Pumpkin कद्दू. Pumpkin कद्दू. Mustard leaves. Mustard leaves सरसों के पत्ते. सरसों के पत्ते. Next is and last dear students mushroom. MASROOM. Mushroom. Mushroom means mushroom. Mushroom means beta mushroom. Okay dear students, our vegetable name is completed. I hope you will understand. Okay beta, thank you. Have a nice day.
dear students, today we will do some basic question answer in science. So let's we start classes first. Dear students, in the last video we did completed question number 1 to 22 question in basic. So let's we start classes first. Heading is basic question answer. Our 23rd question is, how many bones an adult human have? How many bones an adult human have? एक वयस्क मनुष्य के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? एक जो बड़ा मनुष्य हो जाता है, व्यक्ति हो जाता है, उसके अंदर कितनी हड्डियां होती है? आंसर इज 206, 206. हाउ मैनी बोन्स एन अडल्ट ह्यूमन हैव? एक वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं? 206. कितनी हड्डियां होती है बेटा? 206. ओके, नेक्स्ट इज, व्हाट डू यू कॉल ए हाउस मेड ऑफ आइस? व्हाट डू यू कॉल ए हाउस मेड ऑफ आइस? जो बेटा आइस, जो बर्फ़ से जो घर बना हुआ होता है, उसको आप क्या कहते हो? उसको बोलेंगे बेटा इग्लू. IGLOO, इग्लू. What do you call a house made of ice? Igloo. Okay, next is, how many lungs? How many lungs does the human body have? How many lungs does the human body have? जो मनुष्य का, हाँ, 2. How many lungs does the human body have? जो मनुष्य मानव शरीर होता है उसके अंदर लंग्स कितने होते हैं बेटा? फेफड़े कितने होते हैं? 2. Okay, next is, which gas is most abundant in the Earth's atmosphere? Which gas is most abundant in the Which gas is most abundant in the Earth's atmosphere? जो हमारी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? आंसर इज नाइट्रोजन. NITROZEN, नाइट्रोजन. Okay, next is, how many string does a violin have? एक वायलिन के अंदर कितने तार होते हैं? आंसर इज 4. कितने तार होते हैं बेटा? 4. Okay, next is, how many planet are there in our solar system? हमारे सौरमंडल में कितने प्लैनेट हैं? 8. कितने प्लैनेट हैं? 8. Okay, dear students, our basic question answer is completed. I hope you will understand. Okay beta, thank you, have a nice day. Hello student, good morning. I am Sangeeta ma'am, teacher of first class at MLP school राजपुरा. Dear student, आज हम हिंदी में सुलेख करेंगे. सुलेख का अर्थ होता है बेटा अच्छा लेख. सुलेख अच्छा लेख. देखिए पैराग्राफ है, पहले हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे और फिर इसी पैराग्राफ को सेम एज साफ सुंदर राइटिंग में लिखेंगे. चलिए पढ़ते हैं पैराग्राफ. एक शेर था, वह पेड़ के नीचे सोया था. एक मच्छर आया और शेर के कान में भिन्न भिन्न करने लगा. अचानक शेर उठा और क्रोध में बोला, ए मच्छर भाग यहाँ से. मच्छर बोला, क्यों भागूं मैं यहाँ से? शेर घमंड से बोला, मैं जंगल का राजा हूँ, सबसे ताकतवर हूँ. इतना छोटा सा मच्छर और मेरे पास बैठेगा. ठीक है बेटा, तो पैराग्राफ को हम सुलेख में लिखेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे सुलेख. ओके, से उ ल ए ख, सुलेख. 1 लाइन का डिस्टेंस होगा. ठीक है बेटा, साफ सुंदर राइटिंग में लिखेंगे. एक शेर था, एक शेर था, पूर्ण विराम, वह पेड़, के नीचे, सोया था, पूर्ण विराम. एक मच्छर, मैं आधा
रे मच्छर आया, एक मच्छर आया और शेर के कान में, शेर के आने कान में भिन्न 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 करने लगा। ठीक है, पूर्ण विराम। अचानक शेर उठा, अचानक शेर उठा और क्रोध में बोला, बोला, ए मच्छर, मैं आधा छ छतरी वाला छ और र मच्छर, भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। मच्छर बोला, क्यों भागूं, क्यों भागूं मैं यहाँ से। शेर घमंड से बोला, शेर घ मैं ऊपर बिंदु और ड, घमंड से बोला, बोला, मैं जंगल का राजा हूँ, मैं जंगल का राजा हूँ, सबसे सबसे ताकतवर, सबसे ताकतवर हूँ। इतना छोटा सा, इतना छोटा सा मच्छर और मेरे पास बैठेगा, मात्रा बैठेगा और ये पूर्ण विराम। ओके बेटा, तो ये था हमारा सुलेख। आपको भी साफ सुंदर राइटिंग में ऐसे ही करना है, 1 लाइन का डिस्टेंस हो। ओके बेटा, राइटिंग एकदम सुंदर। ओके, थैंक यू बेटा।